Friends, welcome on panel discussion, and the objective of this panel discussion today is to know the steps which are required now once you have got the admission letter from your university in United States of America. Now this particular session is for the visa application I-20 related queries for USA. Now we have seen that from Feb onwards, students are getting admission letters from the universities, and you are getting admission for the fall season. That means you are going to join the universities somewhere in the end of July or August onward. So for this, now you need to fulfill some of the formalities which are related to application, visa applications. Our discussion today is related to that only. With me is Ishita and Shruti. So Ishita, you are in touch with so many selected candidates who are actually now going for their applications. They are getting their I-20s also, and after that they have to apply for visa interviews. They have many queries. They keep on asking a lot of questions. So I'll request you that what are the typical kind of questions and queries of the students, so that Shruti ma'am discuss more about these steps further. Okay, so sir, as many of our students, they are getting the offer letters from the universities, and the first thing that we as your PDA team, we tell the students that okay, if you have got an opportunity, accept it first. Okay, so this is the first point that we always tell the students, that accept So the that means in the letter they ask, in the mail they ask whether you accept it or not. Yes. You have to send Either it. you have Okay. to accept that offer or Okay. you have to reject. That is in your hand. Okay. Okay. Because we have students, they have applied for 2, 3, 4, 5, like they have applied Okay. with so many professors. So if it's not, it depends upon them that for a particular university they are now ready. Okay, so this is something I want. They Okay. have to accept it first. Yeah. So I'm sorry, I'll keep on interrupting you whenever Yeah. some important thing comes to my mind. So it is very important for all of you to know that keep checking your emails, because whenever admission letter comes, the graduate school also gives you time. I remember one of my students, they gave the time till this April. You are to accept it or reject it. Yes, sir. Yeah. अगर सोचो आपने मेल ही चेक नहीं किया, then So- it will be disastrous. So Yes. keep checking your mail. Yeah, please Yes. forward. So after this, now after the students accept the offer letter, now they are confused about the further process. Okay, the university they said okay, now you have to go ahead with I-20 form. Okay, but the students, they are not aware about what is I-20 form. Okay, how we have to fill it. Okay, so we have got, now it differs, like if you have got PhD, then the form differs, or if you have got masters, then the form differs. Okay. So this is something where the students, they lack of knowledge. Okay, how we have to go ahead with masters or PhD. Third, the query students have is ki, okay, if we have got a fully funded PhD, then also the university is asking for financial statements. At this point of time, the students, they are aware about this fact that if you have got a fully funded PhD, then you don't need any financial statement. It's just your passport which is required, and then you are done with the thing. Okay. So इशिता, इसमें वही केस आया था हमारे स्टूडेंट का जिसमें she got fully funded PhD. Yes, sir. And she is getting repeated mails from the graduate school that you please वहाँ पे एक पूरा आपको चेकलिस्ट होता है which you have to submit. Yes. In that checklist they are asking you to submit your financial statements or bank loan documents or whatever you have. Now she has not taken any of these because she has got fully funded scholarship. Now why university is sending you that? Let me tell you something about that also, friends. Foreign university, US university can give you funds for MS program also, and obviously for PhD also. And I know couple of students who are getting as high scholarship in MS itself as they're getting in the PhD. So it is quite possible that a graduate school or the professor might have given you fully funded scholarship in MS also. Now the university wants to check it. They wants to doubly ensure it that you are getting the scholarships or you are arranging it on your own. What are you doing? So that's a ritualistically they ask everyone to submit it. Yes, sir. In such cases, you have to mail them back that I have already got fully funded scholarships, so I am not supposed to submit these kind of financial documents. And also the students can attach the offer letter, where it is clearly mentioned that the huh. stipend or the scholarship that you are getting is this much, and they can re-verify there ki okay, this is something we are getting. So that is the reason we are not attaching any financial statements with it. Okay. Then the third point, which the students, they are like, ma'am, okay, if we have received the I-20, now what is the further process? उसके बाद क्या Then how we have to go ahead, आगे क्या करना है, visa application तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है.
बहुत मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मैम अभी तो अप्रैल मई हो गया है ना, हमें तो अभी तक अब जाके हमें I-20 मिली है, अब आगे का प्रोसेस कैसे होगा, वीज़ा का स्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीज़ा क्लियर होगा या जो इंटरव्यू होता है वो आगे क्लियर होगा नहीं होगा, हाउ विल गो देयर, हाउ विल मैनेज, क्योंकि बच्चे जब जैसे अब अगर मैं फॉल इनटेक की बात करूँ, फॉल इनटेक एवरीवन नोज, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने जाना है, तो हम ऑलमोस्ट बच्चों को ये लाइक वी सजेस्ट कि अप्रैल या मई तक जस्ट स्टार्ट गेटिंग दी वीजा, अपना वीजा स्लॉट बुक करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट Obviously. मे टेक टाइम, ठीक है। तो ये सारी बच्चों की क्वेरीज होती हैं, एंड अब I-20 मिलने के बाद क्या आगे सारा आपका वो हम discuss वो करेंगे. अब आई थिंक श्रुति मैम विल डिस्कस या फ्रेंड्स, ये जो हमारा सारा डिस्कशन है वो अलग अलग वीडियोस में भी आप देख सकते हैं. जैसे अनुष्का के साथ मेरी इंटरेक्शन वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें अनुष्का ने बहुत क्लियरली डिस्कस भी किया है कैसे कैसे आपने करना है. श्रुति मैम इज़ गोइंग टू टेल अस टुडे अबाउट दिस, एंड शी इज़ गोइंग टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑल्सो फॉर दैट. एंड वन मोर थिंग विच इशिता सेड, लाइक अप्रैल 25 टुडे, एंड आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और वीज़ा में बहुत लंबा क्यू होता है. इंडिया के अंदर जो सेंटर्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई, मद्रास एंड ऑल, सो यहाँ पे लाइन होती है, काफ़ी लंबी लाइन. लेकिन नथिंग टू वरी, बिकॉज ऐसा नहीं होता दैट आपको वीज़ा का स्लॉट ना मिले, वो मिल जाएगा. दिस गाइज कीप ऑन वर्किंग टिल लेट इन द नाइट ऑल्सो, और आपको स्लॉट मिल जाता है, तो नथिंग टू वरी. बस अर्लियर द बेटर. द मोमेंट यू गॉट द लेटर्स यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस. Over to you, Shruti ma'am. Now, what are the steps? So, are we going to discuss in detail, or are we going to only tell what are the stages or the steps for this now process further? Sir, I think I'll just basically give a brief for each step, and a detailed video I will just publish it later. For now, I will tell what are the major 4 steps after you accept your offer letter. अच्छा, इससे पहले सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट इससे पहले I-20 होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं. Yes, sir. सो बेसिकली I-20 फॉर्म आपकी यूनिवर्सिटी आपको एज अ लिंक सेंड करते हैं, उसमें आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड Okay. करने हैं इफ यू आर if you don't have any funding basically. Okay. And if you do have funding, suppose we have fully funded PhD, so you just have to upload your passport as वो I-20 में लिखा होता है. Yes sir. फॉर्म के अकॉर्डिंग वो डिटेल्स ही आपको उस अकॉर्डिंग मेंशन होती हैं, तो आपने वही फंडिंग डिटेल्स आपने मेंशन करनी है. Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस I-20 फॉर्म इसलिए भी है, वो बेसिकली एक एलिजिबिलिटी फॉर्म है, एक सर्टिफिकेट है जो आपको यूनिवर्सिटी इशू कर रही है, ताकि आप फर्दर वीजा प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओ. ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक I-20 फॉर्म के बारे में. सो एंड व्हेन यू फिल दिस फॉर्म, जो यूनिवर्सिटी आपको लिंक प्रोवाइड कर रही है, I-20 फॉर्म एक 3 पेज डॉक्यूमेंट है टेक्निकली देखा जाए. और अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें तो नॉर्मल आपको एक सर्विस ID गिवन होती है, जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके नेक्स्ट 3 स्टेप्स में वो रिक्वायर्ड है हर स्टेप पे. Okay. सेकेंड पेज डॉक्यूमेंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके फंडिंग डिटेल्स वहाँ पे लिखी होती है, आपको वहाँ चेक मिल जाएगा कि मेरी फंडिंग डिटेल्स एग्जैक्टली है क्या. आप उसको चेक करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है वहाँ पे. थर्ड स्टेप आपका बेसिकली वो कस्टम स्टेप है, उसमें आपका एज सच कोई काम नहीं है. वो आप जब भी एग्जिट और एंट्री करोगे कंट्री के अंदर, वो डिटेल्स फर्दर एडिशनली फिल होती है, उसमें आपका कोई स्टेप नहीं है. ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. अगर हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास एक फॉर्म आता है DS-160. सो बेसिकली ये फॉर्म क्या है, ये आपकी अप्लाई करने के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, राइट. एंड इसके अंदर आप अपनी लोकेशन के बारे में, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो वो बताते हो. इसके दिस इज़ द ओनली फॉर्म जिसमें आपकी सारी डिटेल्स एंटर होती हैं, वेदर इट इज़ योर पर्सनल डिटेल्स, वेदर आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आप फर्दर स्कूलिंग कहाँ पे, एजुकेशन कहाँ करने चाह रहे हो, even your background, everything is mentioned in this form. So this DS-160, Shruti, somebody is to fill online Yes, on sir. the website? Definitely, And if sir. he said, so what kind of website? I mean, some government का सर website? अगर आप नॉर्मल हम फॉर्म DS-160 160 भी डालेंगे तो आ सर्च जाएगा. करेंगे और आपके पास वो साइट आ जाएगी. Okay. ऑल्सो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा. अच्छा, जब भर दिया उसके बाद? Yes, it is very important just to keep a copy for this form as well. Okay. And if we move to the third step, हमारा थर्ड स्टेप आता है सर्विस बेसिकली फ़ी फॉर्म फिलिंग के लिए. जो हमारी फ़ी रिक्वायरमेंट है अप्लाई वीज़ा प्रोसेस के लिए, उसका एक पार्ट हम यहाँ भी फिल करते हैं. और ये सर्विस फ़ी फॉर वीज़ा अगर हम सर्च करेंगे गूगल पे, एक वेबसाइट निकलती है हमारे पास FMFJEE.com. इसके अंदर हम इसको I-901 फ़ी के अकॉर्डिंग भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर क्या है कि हमारे वीज़ा के अकॉर्डिंग
आपको $3,500 मिनिमम फी रिक्वायर्ड है Okay. आपको फिल करने के लिए। और ये क्यों है, बेसिकली इमिग्रेशन और कस्टम्स है जो आपका ट्रैक करेंगे, जो आपका F1 इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, उसके लिए है। बेसिकली आपको ट्रैक करते रहते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ पहुँचा। और सेम है, जब भी आप एंटर करोगे और एग्जिट करोगे एक नेशन, उसके भी आपकी ट्रैक डिटेल्स इस फॉर्म के थ्रू ही अपडेट होती हैं। ऑल्सो जो मैंने आपको बोला था कि I-20 फॉर्म में सर्विस आईडी आपको मेंशन होती है, वो सर्विस आईडी आपको इस फॉर्म में भी रिक्वायर्ड है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हैंडी रखनी पड़ेगी अपने साथ। और इसके अंदर आपको मेजरली आपके पासपोर्ट डिटेल्स ही फिल करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको करेक्ट पासपोर्ट डिटेल्स फिल करनी है। ये हमारा थर्ड स्टेप यहाँ कवर हो गया, हमने फ़ी पे कर ली और इसकी भी हमने एक रिसिप्ट की कॉपी रख तो ली ये है। फी आप एक बार फिर से बताएंगे, शायद मैंने गलत सुना होगा, $3,500 नहीं होगा, $350 $350, राइट? सॉरी सर, Okay. या Okay. $350 है, या और ये डिपेंड करती है वीज़ा के ऊपर। And Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसमें कि जो बंदे ने अपने जो भी स्टूडेंट होता है, कैंडिडेट होता है, जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं, वेदर इट्स अ सरनेम, इट्स अ फर्स्ट, हाँ, ये बहुत important point है। क्योंकि ना अगर इस टाइम पे DS 160 का जो फॉर्म है, आप अगर कुछ भी रॉन्ग डिटेल के साथ भर देते हो गड़बड़ हो तो जाएगी। फर्दर बहुत लंबा Process प्रोसेस है। है। फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपना सरनेम, इफ यू हैव एनी मिडिल Just like, हाँ, तो मेंशन करो DS 160 फॉर्म और जो ये आगे वाला फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें पासपोर्ट। अच्छा, इसके ऊपर श्रुति, आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक डेडिकेटेड वीडियो में भी, लाइक जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, ये Yeah. 3 चीज होती है। Yes, sir. अब बहुत से लोगों के नाम में 3 चीज नहीं होती, Yes. या तो 2 ही होता है और कईयों के तो एक ही होता है। Yeah. तो जैसे कईयों के एक ही होता है, तो वो कैसे सरनेम की जगह क्या डालेंगे? जैसे सपोज समबडीज नेम इज अशोक, ओनली अशोक, नथिंग लाइक अशोक कुमार और समथिंग, बट ओनली अशोक। सो हाउ इज गोना फिल इट? किसी का नाम है अशोक सिंह चौहान, तो वो 3 नाम हो गए। अब सिंह और चौहान दोनों ही हमारे हिसाब से सरनेम है, तो कौन सा आएगा? और एज शी सेड पासपोर्ट पे होगा, क्योंकि नाम को फिल करना फ्रेंड्स उस फॉर्म में एज पर पासपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। important. उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसमें ये भी नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सर, जब आप ये फॉर्म फिल कर होते हो ना, इसमें साइड में एक हेल्प का ऑप्शन भी है, जस्ट इन केस आपने गलत फिल कर दिया। Okay. वो आपको मेल आईडी उन्होंने स्पेसिफिकली इसी के लिए दी है कि आपको फिर अटैच डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट करके पासपोर्ट और जो भी आपने करेक्शन करवानी है, आपको फिर मेल करना पड़ेगा। अगेन इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस है। ओके, या सो हमारा 3 मेजर स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं मेन स्टेप पे, वो है वीज़ा प्रोसेस। और हम वीज़ा प्रोसेस बेसिकली आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन ट्रैवल डॉक्स करके, और एक साइट को वो रेफर कर देगा। वेबसाइट का नाम है ustraveldocs.com। सो ये आपका वीज़ा प्रोसेस के लिए है। अब अगर हम स्टूडेंट हैं और हम स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए F1 वीज़ा प्रोसेस वैलिड है, तो हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे। और बेसिकली 6 to 7 प्रोसेस है, लॉन्ग स्टेप्स हैं आपको अपनी बस डिटेल्स एंटर करनी है। इसमें भी आपको 15,000 रुपीज़ आपको फीस लगती है, इंडियन करेंसी लगती है। एंड मेजर 6 to 7 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जितने जो भी उन्होंने मांगे हैं, एंड उसके बाद आप सबमिट कर दो एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका बेसिकली मेजर 4 स्टेप्स फ्रॉम I-20 फॉर्म टू वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, यू वांट टू सजेस्ट समथिंग लाइक, आपने चारों स्टेप्स कंप्लीट किए और उसके बाद यू वांट टू बी डबल श्योर दैट यू हैव नॉट मेक एनी मिस्टेक और समथिंग, तो उसको क्रॉस चेक करना है, इनको दोबारा देखना है या कुछ ऐसा, एनीथिंग लाइक? क्रॉस चेक मैं तो कहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स इतने श्योरिटी से अपने साथ लेके बैठो। एक तो आप वाइल फिलिंग यू आर क्रॉस चेकिंग इट ऑलरेडी, ऑल्सो हम डाउनलोड करा रहे हैं बार बार, और रिसिप्ट्स भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप एक बार गो थ्रू वहाँ भी कर सकते हैं, सो दैट बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप यू ऑलरेडी कैन मेक इन कॉन्टैक्ट टू द ऑथराइज पर्सन अगर आपने कोई भी गलती करी है वहाँ पर। और बेस्ट ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी साथ में, अगर आपके कोई जेन्युइनली आपका फ्रेंड या कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सके, क्रॉस चेक कर सके कि ये मेरा नाम देख लो, ये देख लो कहीं गलती तो नहीं हुआ है, अगर ऐसा कर सकें तो नथिंग लाइक दैट, आप डबल उसको श्योर कर लें। एंड जैसे योरपीडिया की टीम राहुल वगैरह कैंडिडेट्स के साथ बैठ के करवाते हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं। एंड प्लस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सर अभी श्रुति मैम ने जितनी भी वेबसाइट्स बताई हैं, whether it's for I-20 पर DS 160 then fee payment, उन सारी वेबसाइट्स पे you will find some instructions, you will find proper instructions कि if you are new to the like always definitely we are new to the website, we haven't filled it yet, so it's very important read the instructions very clearly and fill it carefully, because everything has a solution, but if you have to make it sure that you don't delay with the process, at once only fill it with proper details. Okay, Ishita, one of the reasons that students join Yourpedia kind of platform, they expect help in this also. Do we help them? Sir, definitely we help them because why I'm saying this, once student gets the offer letter,
as we always say that we have foreign mentors. If we have foreign mentors, that means they have gone through this process and they are very much aware after each and every step. And as a student also, they know ki what all problems or what all queries students have. Okay, Fr- so they help very Yeah. nicely. One more thing, friends, I want to tell you is like there's a team application, full filling application team we have, like Rahul and all. So, लेकिन उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू से नो राहुल, यू डू एवरीथिंग, यू फिल माई नेम एंड एवरीथिंग, मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हैं. तो आपको टीम का सपोर्ट पूरा है, लेकिन आपको उनके साथ बैठना है सो दैट वो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं दे टेल यू, एंड एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी डबली श्योर. सो ये एक ऐसा एक्टिविटी रहेगा जिसमें योर इन्वॉल्वमेंट इज़ रिक्वायर्ड. एनीथिंग एल्स श्रुति? ये सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो जब हम साइट अप्लाई कर रहे होते हैं, वीज़ा प्रोसेस या इंटरव्यू स्लॉट बुक कर रहे होते हैं, साइट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है, बहुत ज़्यादा क्रैश होती है. सो मेक श्योर दैट यू आर कीप अपडेटिंग इट. आप रात को भी 2 AM 3 AM यूजुअली ये साइट ओपन हो जाती है, बिकॉज स्पेशली जब बहुत ज़्यादा रश होता है एप्लीकेशंस का, सबको ऑफर लेटर रिसीव हो रहा है, सब अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर रहे हैं. सो मेक श्योर दो. और सबकी ये बहुत बड़ी क्वेरी है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. जैसे इशिता मैम ने डिस्कस किया था, इंटरव्यू की स्लॉट्स डेट करके जब आप इंटरव्यू वहाँ देने जाते हो, आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है. अगर उनको इफ़ यू आर सेलेक्टेड, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट ट्रैक करते रहते हो. वो 1 to 2 वीक्स के अंदर आपको रिसीव हो जाता है इफ यू आर सेलेक्टेड. तो आपको बहुत अच्छा वहीं पे पता चल जाता है कि So pray that they take your passport, Yeah, friends. if they're giving it back, you get to know. If they're taking, so we always pray कि okay, take my passport. भाई मेरे पासपोर्ट तू ही रख ले, I don't want my passport. एंड आई डोंट नो माय पासवर्ड. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स. लेकिन ये स्टेप्स थोड़े डिटेल में आपको इसका वीडियो डिपिक्शन और डिजिटल बोर्ड पे देखना पड़ेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू श्रुति दैट डिटेल वीडियो वी मेक फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड नथिंग टू वरी, यू विल गेट द slot getting is not a problem, but yes, इंटरव्यू कैसे फेस करना है आज उसका डिस्कशन हमने नहीं किया. उसका एक डिस्कशन, इंटरव्यू आपका बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, 2-1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, वो 2-3 मिनट चलेगा मैक्सिमम. लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं. कॉन्फिडेंस, कामनेस, टू द पॉइंट आंसर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या होते हैं, क्या आपसे पूछा जाता है और आपको क्या आंसर करना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बिकॉज इट इज़ इट्स अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. वो आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं आपको, या रख लेते हैं आपको, सेलेक्ट कर लेते हैं. वो कुछ ही क्वेश्चंस का डिफरेंस पड़ता है. दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट, एंड सो शुड यू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि आप वहाँ पे जाके उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकें. दैट इज़ अवर नेक्स्ट चैलेंज विच विल डू इट. सो आई बिलीव नाउ वी एंडेड अप द सेशन, फ्रेंड्स, and watch it and watch couple of more videos on the same theme, that is application filing, visa application filing process after you get admission letter. Thank you.